Dr. Mia Mukhtarul Haq. He will be talking on diabetes and quality of life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी ना 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 नाज Mukhtar is a friend, is a very close friend. He's the General Secretary of Pakistan Psychiatry Association, very busy person, a lot of responsibilities. Today he was also engaged in a course, so he just left in the middle of that course and reached here just for make this presentation. So we are thankful to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you for the kind introduction. Uh, I'm understanding it that there will be a tremendous cognitive load on all heads. So I'll not be increasing more cognitive load. I mean, it's something which is not related with the retinopathy, but yes, with the diabetes. I was being asked to have some deliberation on quality of life and diabetes. While I was going through the quality of life and diabetes, so I came across that there are like at least 30 scales of QL which is being used to assess the quality of life, and there are some scales which are the quality of life is like a bit generalized scale developed by the WHO, and then I came across with the specific quality of life scales being intended only for diabetes. And I was astonished to see that one of the scale, it was consisting of 56 items. So it was very exhaustive scale. I think may be possible that you guys would have utilized it in certain studies. मेरा एक सवाल है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए आप लोग को क्या प्रोटोकॉल क्या है, व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल, कितने अगर एक इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग डायबिटीज़ तो कितने पीरियडिकली आप लोग असेसमेंट, क्या प्रोटोकॉल है, क्या गाइडलाइंस हैं, कितने ड्यूरेशन के बाद आप लोग एक डायबिटिक पेशेंट को देखना चाहेंगे या स्क्रीन करना चाहेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए? तो इट्स Newly diagnosed diabetic, it is yearly. ईयरली. हाँ, And severe diabetic retinopathy like PDR, you have to ask the patient to come every 2 months. every 2 months. So that's I'm understanding it because vision is precious, and by through which we can see the world. So obviously it would be very demanding to screen the patients. And anyway, एक मसला जो कि हम लोग आप लोग भी यू आर कमिंग अक्रॉस और सारे डिसिप्लिन्स के साथ यही है कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर अभी ये डॉक्टर जाहिद का एक स्लाइड था कि अवेयरनेस, वी आर टॉकिंग मोर एंड मोर अबाउट द अवेयरनेस, बट देयर इज स्टिल वी आर लेकिंग बिहाइंड अबाउट द अवेयरनेस, क्योंकि बिलीव हायरार्की सिस्टम लोगों का डिफरेंट है. सो ईच एंड एवरी पर्सन, अभी आप कोविड को देख रहे हैं कि अभी तक आई मीन स्टिल फ्रॉम द एजुकेटेड लॉट यू वुड बी लिसनिंग कि कोई कंस्पायरेसी है. सो ये वाला जो कंस्पायरेसी थी हर जगह पर होती है इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी कम है, यहाँ पर हमारी तरफ ज़्यादा है. तो ये स्क्रीनिंग और सारे प्रोटोकॉल्स बन जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है और उनकी इंगेजमेंट है. सो आई मीन दैट्स रियली समथिंग व्हिच इज़ चैलेंजिंग. एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में हमें इतना, क्योंकि सारे वो रेफरल्स आते रहते हैं, सारा कुछ विल बी बिजी विद अवर थिंग्स, बट द मेन गेम चेंजर इज़ द कम्युनिटी. कोई भी डिसिप्लिन अगर कोई उसको प्रोग्रेस करता है तो कम्युनिटी की इंगेजमेंट से करता है. एंड आई एम प्लीज टू सी कि कम से कम ऑप्थेमोलॉजी आपकी काफ़ी जो है वो इन्फ्यूज़ कर गई है कम्युनिटी में. ऑनेस्टली वी कुडंट डू दैट दो वी आर रिप्रेजेंटिंग द मेंटल हेल्थ, लेकिन हमारा काम इतना नहीं है जितना आप लोगों ने कम्युनिटी में इन्फ्यूज़ किया है. क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब भी बात आती है तो ये डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं किसी भी डिजीज़ के. I mean, it's not like just the medication. Quality of life करिए, I mean, if a person is having certain disorders, तो उस disorder की वजह से how much his life is being compromised, और इसकी जो एक routine work है और वो सारा कुछ वो कितना compromise कर गया. I mean, I was having a very close friend and I knows him very well. He was diagnosed as diabetes years back, and
he was so active at that time, and then he took at least 6 months to cope with that, and he was, all his routine work was being compromised. He was at home, and he was worrying about his illness and blah blah blah. And after 6 months, then again he was, he was a senior professor, and after 6 months he was a medical professor, and after 6 months then he was like back to his normal life and things like that. So you can see the most problematic is the chronic illnesses. Diabetes is a chronic illness. So I mean it affects every domains of one's life, biologically, psychologically, and socially as well. So I'll not take much of the time with the technical jargons. मैं जब आ रहा था तो I was thinking कि ऑप्थेमोलॉजी की कम्युनिटी है, डायबिटीज़ के ऊपर बात करनी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हमें आती नहीं है, सिर्फ नाम सुना है. तो मेरा जो एक माई एम ऑफ जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वुड बी दैट कि मैं एक दो स्किल्स के ऊपर बात करूं कि हाउ वी कैन डील विद द स्ट्रेस and how we can go ahead and how we can groom our mental health in general, and it will be helpful for our own self as well and for your patients as well. मैं एक जल्दी गो थ्रू करूँगा जो लाजमी बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ख़राब होती है, तो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ स्ट्रेस, and it means that there is psychosocial stress, biological stress as well, with the disease, with the management, with the expectation of his future कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या उसका असर पड़ेगा उसके काम के ऊपर, anything like this. So I mean there are many things. So ultimately quality of life के जो key determinant है वो stress है, and that stress जो है वो एक positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. The positive stress is that which keeps you working. The negative stress is that when your productivity become compromised. So every stress is not negative. अब ये डायबिटीज़ वाला मसला ऐसा है कि माफ़ तो नहीं करता, वो तो है अंदर, लेकिन स्ट्रेस की वजह से जो उसकी मैनेजमेंट के अंदर फ़र्क आ जाता है, जो उसकी जो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स हिज इलनेस, सो दैट कैन एंडेड विद द मोर कॉम्प्लिकेशंस. मैं एक जल्दी गो थ्रू करूँगा एंड देन आई विल कम टू दैट कि वो कौन से ऐसे दो माइक्रो स्किल्स हैं जो कि हर एक अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. डिप्रेशन जो है डायबिटीज़ में जो इज़ बीइंग रिपोर्टेड इन द कम्युनिटी रिसर्च इज इट्स 15 to 20%, and about in the diabetic clinics from 50 to 80%. By the way, depression is the second leading cause of all the disabilities in the world. कैसे डायबिटीज़ का स्ट्रेस हर एक मुख्तलिफ पॉपुलेशन में मुख्तलिफ होता है. ओल्डर peoples when involved, they have their own worries, youngs have their own worries, and the children and adolescents, they have their own worries, and most of the time their family become the partner into their treatment, and the family worries as well. So the guidelines shows that it should be after every year the diabetic patient should be screened for depression and anxiety, and if it is there, then quantify it, and if it is from moderate to severe, refer it to the mental health professional who is experienced with that marginal population. Like if it is kids, children, then perhaps it's good to go with the mental health professional who is having a good experience with the children. And if it is the old age, then old age, and if it's the young, then young, because the different population have their own needs and their own stresses. And so coming back to the मैं डिप्रेशन की डायग्नोसिस की डिटेल में नहीं जाऊँगा. I mean each and every person would know it. सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि every person in his life goes into depression. डिप्रेशन एक और चीज़ है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक और चीज़ है. माइल्ड टू मॉडरेट सेल्फ लिमिटिंग होते हैं आपकी काउंसलिंग से, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन से, फैमिली सपोर्ट से, जो उनके जो डिफरेंट जो साइकोसोशल जो सर्कल्स हैं, दे बिकम ओके विद दैट and they don't need any medication. Like in severe, when there is suicidal and thing like that, then perhaps specialized therapies or medication would be like needful, because life is limited and life is precious. The people do the suicide as well. Diabetes का जो है, जो जितने भी chronic illnesses हैं, that's very important to see it कि whether this patient, जब भी whenever the patient is going into complication of that chronic illness like diabetes, one should think that why this person is going into complication of the, like even the diabetic retinopathy. So might be possible that the diabetes is not controlled. Why it's not controlled? I mean, is it something resistant, or he's missing doses, or is something which is his behavior is the determinant factor? So these are all things which need to be like, one need to be like mindful
I call it passive suicide. Like if a diabetic patient he is not coming up with treatment और वो एक जादुई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है कहीं पर वो वाला पानी उस तरफ है वो वाला पानी उस तरफ है you would be having you came across with certain stories कि जी वो फलाना बाबा है वो चीनी विनी के ऊपर दम दरुद करते हैं और उससे आप ठीक हो जाते हैं. That is all passive suicide. That is the behavior, and that is very important to manage the behavior into all these disorders. Anxiety disorders में एक issue ये है कि इसके ऊपर तो हमने बात कर ली कि because there is a stress, तो अगर anxiety mild to moderate है it just needs psycho education. एक और मसला डायबिटीज़ के अंदर ये लगा रहता है कि the patients are always fearful about the hypoglycemia, और हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है तो उसके कॉग्निटिव एरर्स भी शुरू हो जाते हैं. तो डायबिटिक केयर में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी एंजाइटी के सिम्टम्स एग्जैजरेट होते हैं. दैट नीड्स साइको एजुकेशन दैट व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया एंड व्हाट आर द सिम्टम्स एंड हाउ यू कैन मैनेज द हाइपोग्लाइसीमिया. डिप्रेशन के ऊपर हमने बात कर ली है. सीरियस मेंटल इलनेस की मैं बात करूँगा. एक आई वुड डिवाइड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इनटू टू. एक माइनर प्रॉब्लम्स हैं और एक सीवियर प्रॉब्लम्स हैं. सीवियर प्रॉब्लम्स में while we are talking about severe problems, we are talking about basically psychosis. Psychosis, it needs long-term treatment. जो उसकी medication, it can cause diabetes as well, and it can have certain side effects on your ophthalmology as well. So whenever a person is having psychosis, we need to go through his medication. That well, is this medication is the culprit because the diabetes is not controlled or his eye condition is not doing well. So for that matter, we need to having a liaison with your mental health professional if that patient is taking already medication. And for the same reason, if a patient is having certain eye condition like glaucoma, stuff like that, so there are many antidepressants which further complicates those conditions. So we need to be mindful about the side effect of the medication as well. Then I come to the lifestyle management. ये एक कंसेप्ट है कि डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट, ये पूरा उसका एक मैनुअल है. और वो मैनुअल यूजुअली आई डोंट नो अबाउट ओवर हियर, लेकिन ये एक मैनुअल उसका है और सिस्टमेटिकली जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं और दे आर हैविंग दे आर बेसिकली दे आर नॉट साइकोलॉजिस्ट, दे आर द लेमैन वर्कर्स आर द हेल्थ वर्कर्स, इसको आप ये कह सकते हैं हेल्थ असिस्टेंट्स होते हैं जो कि इस मैनुअल में ट्रेन होते हैं एंड देन दे एडमिनिस्टर इट. आप लोग वॉक वगैरह करते हैं? कोई सना तो सो रहा वाक का तो वक्त हमने मिला ही नहीं. कोई कितनी वॉक होनी चाहिए यूजुअली? एनीवन? 40 minutes. एग्जैक्टली कुछ लोग रिकमेंडेशन हैं कि स्टेप्स को आप मेजर करें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी आप टाइम को आप मेजर करें. आई मीन देयर इजंट एनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अ पर्सन नीड टू बी ऑन द मूव. और ख़ुसूसन डायबिटिक पेशेंट के लिए वो कहते हैं कि एवरी 30 minutes दे शुड लाइक यू नो सेडेंटरी लाइफ, एवरी 30 minutes ही शुड हैव अ शॉर्ट वॉक. ये साइकोसोशल केयर जो है ये मुख्तलिफ, आपने देखा है कि स्लाइड में मुख्तलिफ डोमेन्स हैं कि उसके एटीट्यूड के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि इस ABV से हमें क्रॉनिक इलनेस, व्हाट इज़ द एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट इलनेस, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट एंड आउटकम्स, कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है और एक्चुअल क्या सूरत हाल है और उसका मूड क्या है उस डिज़ीज़ की वजह से, हाउ मच इट्स बीइंग अफेक्टेड. Quality of life, again, it's the whole domains, and I don't have the easy answer about the resources, financial, social and emotional, but we are having some certain social sector जैसे ज़कात का होता है, कुछ और भी ऐसी हैं कि जिनका आपको पता होना चाहिए कि from where this patient can be benefited if he is a poor patient, and yes of course psychiatric history as well. इसके ऊपर हमने बात कर ली है. एक है डायबिटिक स्ट्रेस डिस्ट्रेस, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा. एक होता है डिप्रेशन, एक होता है एंजाइटी, या जो एक मुख्तलिफ जो क्लासिफिकेशंस हैं, एवरी स्पेशलिटी इज़ हैविंग इट्स ओन क्लासिफिकेशन.
एक है डायबिटिक डिस्ट्रेस, ये एक टर्मिनोलॉजी है विच इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द साइकोलॉजिकल रिएक्शन, द नेगेटिव साइकोलॉजिकल रिएक्शन टुवर्ड्स सर्टेन डिसऑर्डर. लाइक एक पर आई मीन अ पेशेंट वुड बी हैविंग डायबिटीज़, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी मुझे डायबिटीज़ नहीं है, आई डोंट हैव डायबिटीज़. ऐसी बस वो है, थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन आई डोंट नीड एनी मेडिकेशन, आई डोंट नीड इंसुलिन और इन्फ्यूजन या वटेवर. तो वो एंड ही विल बी सीकिंग लाइक अल्टरनेटिव मेडिसिन या फेथ हीलर्स के पास जाता है या जो भी जाता है कुछ. That is a negative psychological reactions towards the disorder, and ultimately that will end it into the complication, all sort of complication. Another diabetic distress एक ऐसा psychological reaction है कि जो कहते हैं कि अभी वैसे भी ठीक नहीं होता और ये लोग वैसे भी मरते हैं. डॉक्टर सना कहते हैं कि जो मैंने एक बार उनको कहा कि ये एक्सरसाइज और सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और ये एक हमारी डिबेट चल रही थी. मैंने कहा कि नहीं जी सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, लाइफ स्टाइल और ये स्टफ़ लाइक दैट. तो मैंने इसे कहा कि यार हमने तो आईसीयू में या वहाँ पर जो लोग मर रहे होते हैं, जो पेशेंट्स कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं और ये सारा कुछ होता है, तो कोई लीन वीन लोगों को हमने ज़्यादा नहीं देखा, नहीं मोटे लोगों को हमने नहीं देखा, सारे फिट लोग होते हैं जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होते हैं, सारा कुछ होता है. तो वो डॉक्टर सना रिप्लाई वॉज वेरी अब्रप्ट. वो कहते हैं कि मोटे लोग तो पहुँचते ही नहीं हैं हॉस्पिटल, पहुँचते ही नहीं है. So I mean that's a good answer as well. So anyway, diabetic distress is a negative psychological reaction towards the disease. अब इसमें क्या चाहिए होता है? There needs a lot of work about the psychoeducation and things like that, so that you can convince the patient and the family education as well. कब ये एक just a slide you go through that कि कब आप referral देते हैं psychosocial care में. These are all the factors which we had discussed. आप एक मिनट में गो थ्रू हो जाए. मैं बच्चों के ऊपर बात करना चाहूँगा. द चिल्ड्रन आर हैविंग डायबिटीज़ एज वेल. सो नाउ देयर आर टू पार्टनर्स, एक बच्चा होता है और उसकी फैमिली होती है. सो वन नीड टू हैव द फैमिली ऑन बोर्ड, बिकॉज अभी वो एक बच्चा जो है अभी एक आई मीन द एडल्ट ही कैन स्पीक ऑन हिज ओन, लेकिन इफ दिस इज़ अ चाइल्ड तो उसकी जो केयरिंग फिजिशियन है वो तब्दील होते रहते हैं. सो दैट्स अ केज. तो उस हालत में आपको फैमिली को जो भी प्राइमरी फिजिशियन है, जो कि अटेंडिंग फिजिशियन है जिस वक्त, वो यू नीड टू एजुकेट द फैमिली about the diabetes and its complication and the management and the possible stress and the possible productivity of the kid into the school as well. So the family need to be taken on board. If the family is not taken on board, तो जब ये glitches सामने आएंगे, जब caring physician तब्दील होगा, तो जो केयरिंग फिजिशियन जब तब्दील होगा, तो I mean every consultant is having stress of time. अब उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितने पहले वाले को थी. अब अगर if the family is on board and they are having all the information, so perhaps it will be a good continuity of the care. So that is important that the family need to be on board. फैमिली की स्ट्रेसेस होती हैं कि उसके बच्चे का क्या होगा, शादी का क्या होगा, लड़कियों का मसला कि जी उनको अगर फ़र्ज़ करो अगर कंसेप्शन है, डायबिटीज़ भी है, तो क्या सूरत हाल होती होगी. सो मीन इट ऑल नीड्स साइको एजुकेशन. और उसके स्कूल में क्या हम करें, वहाँ पर अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो क्या करें. सो मीन इट्स ऑल थिंग्स दैट नीड साइको एजुकेशन. सो मीन इन द चिल्ड्रन दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी मच डिमांडिंग. यहाँ पर आई एम एंडिंग इट. देयर आर लाइक सर्टन रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड सर्टन गाइडलाइंस आर देयर. मैं एक दो स्किल्स के मुतल्लिक बात करना चाहूँगा. एक चीज़ जो है वो ये कि जो एक अवेयरनेस है, जैसे डॉक्टर जाहिद ने कहा, अवेयरनेस इज़ अनदर थिंग. वो कम्युनिटी लेवल की ऊपर होती है. एक होती है साइको एजुकेशन. कोई आई मीन इट्स समथिंग सब हम कर रहे होते हैं. क्या होता है साइको एजुकेशन में? एग्जैक्टली, थैंक यू. साइको एजुकेशन का ये होता है कि आप जिस मरीज़ को आपने साइको एजुकेट करना होता है, तो उसका सबसे पहले ये कि आप उनसे पूछें कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन है उस डिज़ीज़ के मुतल्लिक, एंड देन बिल्ट ऑन दैट आप उसको इन्फॉर्मेशन दें. और फिर आप उनको देखें कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उस क्या क्लिनिकल आउटकम्स हैं, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. वो अगर उसको पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो then you build on that information, your information to psycho educate him. And if you think कि वो प्रॉपर नहीं समझा,
और उसकी जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स है उसको, यानी ही इज़ नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, देन ऑलवेज वी नीड टू टेक द फैमिली ऑन बोर्ड। एक पेशेंट है, मेरा एक सवाल है कि अगर उसको माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है और वो आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी का केस है, यू थिंक कि वो कंप्लाई नहीं कर रहा उसके साथ आपके ट्रीटमेंट के साथ, एंड यू आर थिंकिंग दैट इज ही हैविंग सम प्रॉब्लम, तो आपको टूल्स वूल्स तो आजकल हैं और आप पूछ भी सकते हैं। आप लग रहा है कि शख्स जो है माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेस है, लेकिन परहैप्स मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करते हैं आप उस मरीज़ के साथ? उसका जो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है, कैसे उसको आप डील करते हैं? पॉजिटिव इंसेंटिव्स देते हैं Like- कंडीशंस, लाइक लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी और ब्लाइंडनेस होती है, तो हम उस ब्लाइंडनेस को थोड़ा सा छुपा लेते हैं और उसकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो हम कहते हैं कि इंशाल्लाह यू विल नेवर ब्लाइंड इन योर लाइफ और दैट विल टेक 12 to 15 years। सो उसकी वजह से जो माइल्ड डिप्रेशन है वो थोड़ा सा Most of the time we increase their depression By telling all these their things. complication and everything. मेरे पास एक सर्जन साहब आए और मुझे अभी तक याद है, तो उसने कहा कि मेरे पास जब मरीज़ आ जाती है, वो वेरी कॉम्पिटेंट सर्जन, पेरिफेरी में काम करता है, तो उसने कहा कि मेरे पास जब मरीज़ आता है तो उसकी आई मीन ही इज़ अ फेलो, तो उसने कहा कि मेरे पास जब मरीज़ आ जाते हैं तो मैं उसको प्रॉपर साइको एजुकेट करता हूँ, प्रॉपर। मैंने कहा कितना टाइम लेते हैं? कि जी मैं 10 मिनट लेता हूँ, 15 मिनट लेता हूँ, आधा घंटा लेता हूँ। मैंने कहा फिर मरीज़ के साथ क्या होता है? सर वो भाग जाता है। आप उसको कह रहे हैं कि जी आपका हमने अपेंडिक्स करना है, तो उसमें जो है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है, पता नहीं ये भी हो सकता है, सारा कुछ इतनी सारी चीज़ें हम बता देते हैं, तो वो कहते हैं कि आई मीन इट्स बेटर टू लिव विद दिस पेन रादर देन टू डाई। तो एक बैलेंस रखना पड़ता है इन्फॉर्मेशन में कि कैसे आप सैंडविच करते हैं चीज़ों को, कि आप उसकी जो माइल्ड टू मॉडरेट में माइंड इट्स ऑल साइको एजुकेशन, और साइको एजुकेशन में आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, फिर आप ये भी देखते हैं। एक और पेशेंट की मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ, ही वाज अ फिजिशियन, लीडिंग फिजिशियन, तो वो उसके साथ जब बातचीत हुई, हिज वाइफ शी डाइड एंड देन ही गॉट इनटू दैट डिप, जब वो डिप कर गया तो उसने क्लिनिक भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो उसके साथ में जब वो कर रहा था सारा कुछ, मुझे लग रहा है कि ये तो एक ब्रियोमेंट है, ब्रियोमेंट में कोई मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने उससे कहा कि सर आजकल आपकी क्या रूटीन है? घर पर होता हूँ और उसकी खबर जाता हूँ, ज़्यादातर मैं उस फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। मैंने कहा सर वो क्लिनिक और आपके दोस्त यार कहते कि सब छूट गए। तो बेसिकली एक बात ज़रूर याद रखें कि आपके डिफरेंट सर्कल्स हैं, लाइक यू आर हियर, यू आर प्रोफेशनली, आपका एक प्रोफेशनल सर्कल एक अलग चीज़ है, आपकी फैमिली लाइफ का एक सर्कल एक चीज़ अलग है, आपकी सोशल लाइफ एक अलग है। मसला हमारे साथ ये है कि ये 3 गरारियाँ चल रही हैं, 4-5 गरारियाँ चल रही हैं, एक जगह के ऊपर आपको प्रॉब्लम दरपेश है और सारे डोमेन्स इफेक्टेड हो गए। अभी आप यहाँ पर हैं, आपके बॉस ने आपको यहाँ पर डांट दिया सारा कुछ, अब आप उस डांट को घर पर ले जाते हैं, अपनी बीवी के ऊपर निकाल लेते हैं, बच्चों के ऊपर निकाल लेते हैं, और वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। फिर कहते हैं कि आई डोंट लाइक टू मीट विद एनी फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल भी ख़राब हो जाता है। आपने इस विशियस साइकिल को तोड़ देना है। उसकी बिहेवियरल एक्टिवेशन उसको कहते हैं कि उनसे कहें कि अपने पीयर ग्रुप के साथ मिले, अपने पीयर ग्रुप के साथ मिले, वॉक करे, थोड़ा सा अपने दोस्तों यारों के साथ मिले, कि उसकी वो जो और अपना क्लिनिक शुरू करे, जो उसके रूटीन का काम, यू नीड टू मोटिवेट हिम। जब वो होगा तो उसके वो 3 गिरारियाँ चल पड़ेंगी, और ये जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है वो ऐसा ऐसा खुद ओवरकम हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक सर्कल उसके तीनों और सर्कल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो एक दिन आएगा 6 महीने के बाद वो डीप डाउन और डिप्रेशन में चला गया, परहैप्स देन ही वुड नीड ट्रीटमेंट। तो दैट सिंपल बिहेवियर एक्टिवेशन है, जो कि एक सिंपल चीज़ है, आप उसकी फैमिली को ऑन बोर्ड ले सकते हैं कि भाई इसके वो जो नॉर्मल रूटीन वर्क्स है, तो उसको सपोर्टिव शेल्टर्ड इन्वायरमेंट पे आप उसकी शुरू करें, एंड देन यू ऑब्जर्व इट। एक और साइको एजुकेशन के केस मुझे व्हाइल आई वाज इन ट्रेनिंग, तो हम थेरेपी सीख रहे थे। एक पेशेंट आया कैटरेक्ट का, अभी मुझे याद आया, तो वो काफ़ी फेयरफुल था और एंजाइटी थी उसको, मेडिसिन भी लिए, उसको ठीक नहीं हुआ, हमारे इतने चढ़ गया। तो मैंने कहा यार इसको मसला क्या है? कहते कि बेसिकली मेरा जो फेयर है वो यहाँ से डेवलप हुआ है कि उसको कैटरेक्ट था। कहते कि वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट कह रहा है कि आपका ऑपरेशन होना चाहिए, और ऑपरेशन जब होगा तो मुझे ही वाज हैविंग ऑल द फेयर कि पता नहीं ब्लाइंड हो जाऊंगा और पता नहीं ये हो जाऊंगा और ब्ला ब्ला ब्ला। मैं प्रॉपर नहीं समझ पाया। मैंने कहा कि इन सारी चीज़ों को, तो मैंने कहा कि ब्लाइंडनेस तो आपकी अच्छी हो जाएगी। बहरहाल एक चीज़ हमने डिसाइड की, हमने कहा कि इसके साथ रोल प्ले करते हैं। तो प्रॉपर हमने बस वो एक जो है
सिचुएशन बनाई, इट टुक अस 10 मिनट्स। एक को सर्जन बनाया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनाया और उसको लेटा दिया और उसका एक जगह हमने कहा कि अब आपको हमने इंजेक्शन दे दिया तो आपको इस आँख में आपको कुछ महसूस नहीं होगा, बाकी आप जो है ना यू कैन हेयर द वॉइसेस इन ईच एंड एवरीथिंग। कहते मेरी आँख को कुछ महसूस नहीं होने के, कुछ महसूस नहीं होगा। कहते वेल सर इट्स ओवर। उसको ये मसला था कि ये एक छोटी सी चीज़ थी जो कि ना वो समझ पा रहा था, ना हमें समझ पा रही थी, ना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को पता लग रहा था। और उसका फिर ये था कि वेल ही विल बी इंजेक्टिंग दैट इंजेक्शन, तो जो प्रोसीजर कर रहे होंगे तो सारा कुछ उसको पता चल रहा होगा, तो हाउ ही कैन कोप विद दैट। उसने कहा कि बस सर मैं ठीक हूँ। तो ये छोटी किस्म की जो चीज़ें होती हैं, वी आर हैविंग ऑल द बिजी लाइफ, तो वो चीज़ें हमसे इधर उधर हो जाती हैं। सो मीन साइको एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी आजकल मार्केट में काफ़ी, उसका नाम है लिटरेचर में भी आप लोगों ने सुना होगा माइंडफुलनेस का। हैव एनी पर्सन हैड एनी आइडिया ऑफ माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस एक टेक्निक है और ये उन्होंने जो पुराने ज़माने में हमारे आबा अजदाद करते थे, मेडिटेशन करते थे, मुराकबा करते थे, तो उससे उन्होंने कुछ स्किल्स ली हैं। माइंडफुलनेस में ये कहते हैं कि एक आपका प्रेजेंट है, एक आपका पास्ट है और एक फ्यूचर है। इसको समझ लें, लाइफ विल बिकम वेरी इजी। हर एक आदमी का एक पास्ट है, एक फ्यूचर है और एक प्रेजेंट है। माइंडफुलनेस आपको ये सिखाता है कि योर पास्ट इज़ अ ग्रेवयार्ड, उसको आप अंडू नहीं कर सकते, वो रिकॉर्डेड हो गया है। तो व्हाई यू वरी अबाउट योर पास्ट, यू कम आउट योर पास्ट। ज़्यादा स्ट्रेसेस, आप जब भी स्ट्रेस में हो, जब भी व्हेन एवर यू आर स्ट्रेस डिप्रेस, तो अपने आप को, अपने दिमाग को देखें कि वो किधर है। या तो वो पास्ट में चल रहा है या वो फ्यूचर में चल रहा है, या आपको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है या पास्ट का कोई गम है। तो माइंडफुलनेस ये बताता है कि एक्सेप्ट योर पास्ट वट एवर इट इज़। आपसे every person past is having negative and positives. You accept all the positive and negative and peace, at peace your life. और उसके ऊपर आप जो अगर कुछ गलतियाँ हैं तो तौबा इस्तग़फ़ार करें, आगे निकलें, मूव करें। That is something which is very 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 important. And if you are stuck with your past, you are living into your past. और आपका प्रेजेंट तो बस ऐसे ही चला गया। So the only moment which you have is your present. If your mind is focused on your present, that's becoming your future. So rather having a guilt about the past life or worrying about the future, it's all futile wastage of time. The only moment which you have is your present moment. You can invest your all thoughts into your present to make your future. जो past है वो गुजर गया है। तो ये एंजाइटी तब होती है जब दिमाग जो है वो फ्यूचर में लगा रहता है। डिप्रेशन तब होता है कि जब दिमाग जो है वो पास्ट में फंसा रहता है। सो इफ अ पर्सन इज द प्रिजनर ऑफ हिज फ्यूचर और इज द प्रिजनर ऑफ पास्ट, so this person is not having a good mental health. He cannot progress because he is not focusing on the present moment. So that is a technique which each and any person can practice it. जब भी आप स्ट्रेस में हो अपने दिमाग से पूछें कि आपका दिमाग किधर है एंड मूव करें, वहाँ से प्रेजेंट मोमेंट में ले आएँ। ये एक टेक्निक मैं कहता हूँ कि अगर हम आज सीख पाए सो लाइफ विल बिकम एट पीस। दूसरी स्किल जो आखिरी स्किल मैं बताना चाहता हूँ, एग्जैक्टली बिल्कुल, दूसरी जो आखिरी टेक्निक मैं बताना चाहता हूँ ये कि आपके थॉट्स एक ट्रायड है। एक आपके थॉट्स हैं जो हम सोच रहे होते हैं, वो उन थॉट्स से हमारे इमोशंस बनते हैं, हमारी फीलिंग्स बनती हैं। इफ़ आई एम थिंकिंग अबाउट सम गार्डन, सम फ्लावर्स, तो उस फ्लावर्स और उसका एक इम्पैक्ट मेरे फीलिंग्स के ऊपर पड़ता है और वो फीलिंग से फिर मेरा बिहेवियर बनता है। तो व्हेन एवर यू आर एट स्ट्रेस, यू सी इट कि आपके दिमाग के अंदर कौन सी थॉट्स चल रही हैं। वो थॉट्स आपको, वही थॉट्स आपको, इट मेक्स यू हैप्पी एंड इट मेक्स यू डिप्रेशन। दिस वर्ल्ड इज़ ऑल फुल ऑफ इल्यूजन, देयर इज़ नथिंग रियल। रियल जो है बस वो एक अल्लाह ताला की ज़ात है। आपके अभी आप खुश हैं, अभी आप जो है ना डिप कर गए, तो ये एक फ्लक्चुएशन चलती रहती है। तो जब भी आप एट स्ट्रेस हो, अगर खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हेनेवर यू आर एट स्ट्रेस, तो सेकंड टेक्निक ये है कि यू सी कि कौन से थॉट्स चल रहे हैं एंड यू नीड, क्योंकि वही थॉट्स आपको
आपकी फीलिंग्स को चेंज कर रही है, और वो फीलिंग से आपका बिहेवियर बन रहा है, और वो बिहेवियर फर्दर आपके थाट्स को नेगेटिव मज़ीद इन्हेंस कर रहा है. सो द गेम चेंजर इज़ टू चेंज योर थाट्स. उसको आप एड्रेस करें, आपकी फीलिंग्स बेहतर हो जाती हैं, आपका बिहेवियर बेहतर हो जाता है. थैंक यू वेरी मच.